بارش کا دن تھا، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور فضا میں نمی سی رچی ہوئی تھی۔ میں دفتر سے جلدی نکل آئی تھی کہ کئی دنوں سے دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ابا کی یاد شدت سے ستا رہی تھی۔ دوپہر کو اچانک دل بے چین ہوا تو سوچا بھائی کے گھر چلی جاؤں، شاید ابا سے کچھ باتیں ہو جائیں۔ بھائی کا گھر میرے راستے میں ہی تھا، لیکن دل نے کئی بار قدم روکے۔ میں جانتی تھی کہ جب سے امی کا انتقال ہوا ابا جیسے گھر میں اجنبی ہو گئے تھے۔ نئی نسل کی روایات، رسمیں اور باتیں ان کے دل سے میل نہ کھاتی تھی۔ بھابھی بھی کچھ خاص خوش مزاج نہیں تھی، ابا کا ذکر آتا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو بھابھی نے دروازہ کھولا۔ ہمیشہ کی طرح چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ ارے آپ آئیے آئیے، ابا گھر پر ہیں؟ ذرا ملنے آئی تھی، بھابھی نے ہلکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ وہ تو اپنے کسی پرانے دوست کے ہاں گئے ہیں، شاید آج رات وہیں رکے۔ میرا دل کو کچھ قرار نہ آیا، میں دروازے کی چوکھٹ پر ہی کھڑی رہی۔ کچھ تھا جو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میرے جانے کا اشارہ کیا ہی تھا کہ اوپر کی منزل سے ایک کھانسی کی مدھم سی آواز آئی۔ یہ آواز میرے لیے اجنبی نہ تھی، بچپن سے ابا کی یہ خاص قسم کی کھانسی میرے دل پر نقش تھی۔ میں ٹھٹک گئی۔ بھابھی نے فوراً کہا، ارے وہ تو محلے والے انور چچا تھے، اوپر والی چھت سے آواز آ رہی ہے۔ لیکن میرے قدم رکنے والے نہ تھے۔ میں نے اپنے جوتے اتارے اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ بھابھی میرے پیچھے پیچھے آ گئی، شاید روکنے کی کوشش میں۔ اوپر کچھ نہیں ہے، بس پرانے سامان کا کمرہ ہے۔ اب کیوں زحمت کر رہی ہیں؟ ان کی آواز میں بے چینی تھی۔ میں نے کچھ نہ کہا، لیکن قدم تیز ہو گئے۔ چھت پر قدم رکھتے ہی جیسے پورے بدن میں بجلی سی دوڑ گئی۔ دھوپ تیز تھی، وہ دھوپ جس میں کوئی پرندہ بھی سائے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ وہاں میرے ابا تھے، ابا جو ہمیں دوپہر کے سورج سے بچا کر اسکول چھوڑتے تھے، آج خود اس کے نیچے بیٹھے تھے، ایک پرانی چٹائی پر جس کے کنارے پھٹ چکے تھے۔ دھوپ میں ایسے بیٹھے تھے جیسے وہ اس گھر کا حصہ ہی نہ ہو، کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے، چہرہ زرد اور آنکھوں میں وہ خاموشی تھی جو کسی مظلوم کی آخری فریاد ہوتی ہے۔ ان کے سامنے وہی پیالہ رکھا تھا جو ہم بچپن میں کتے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس میں روٹی کے دو سخت ٹکڑے تھے جو شاید صبح کے ہوں یا کل کے۔ ابا وہ روٹی پانی سے نرم کر کے کھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے کلیجے میں ایک عجیب سا درد اٹھا، زبان جیسے مفلوج ہو گئی ہو۔ میں چپ چاپ کھڑی دیکھتی رہی، آنکھوں سے آنسو نکلے بغیر اندر ہی اندر دل رو رہا تھا۔ ابا، میری آواز سے لرزش تھی۔ ابا نے چونک کر میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں حیرت، خوشی اور شرمندگی یہ سب یکجا تھی۔ وہ ایک بچے کی طرح بوکھلا گئے، جیسے رنگ ہاتھوں پکڑے گئے ہوں۔ بیٹا تم یہاں، تم کیوں آئی؟ بات کیا ہو رہا ہے؟ بس وہ کھانسی ہے نا، میں نے سوچا بچوں کو نہ لگ جائے، تو بہو نے کہا کہ تم اوپر والے کمرے میں رہ لو۔ میں نے پلٹ کر بھابھی کی طرف دیکھا جو دروازے پر کھڑی تھی، آنکھوں میں شرمندگی نہیں بلکہ بے حسی تھی۔ دیکھے نا، ہمیں بھی تو بچوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے نا۔ ابا کو کھانسی ہے اور عمر بھی زیادہ ہے، ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اوپر رکھا ہے بس۔ تو یہ پیالہ، یہ روٹی کیا مہمانوں کے لیے ہے؟ اور وہ بس ابھی میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ تو بس بچی گچی روٹی تھی۔ جھوٹ، صرف جھوٹ۔ میں نے سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ میرے باپ کو اس گھر میں وہ عزت بھی نصیب نہیں جو ایک نوکرانی کو دی جاتی ہے۔ وہ دھوپ میں اس لیے تھے کیونکہ ان کے حصے کا سایہ بھی اب اس گھر کے لیے بوجھ بن چکا تھا۔ ابا نے میری آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھے تو نظریں جھکا لی۔ بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم فکر نہ کرو، یہاں بیٹھا ہوں۔ آسمان نظر آتا ہے اور کچھ یادیں۔ ان کی آواز رک گئی، جیسے کوئی گھونٹ بھر کر آنکھوں کی نمی کو زبردستی اندر دبا رہا ہو۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما، وہی ہاتھ جو کبھی میرے لیے چھتری بنتا تھا، آج دھوپ میں جل رہا تھا۔ میرے دل نے فیصلہ کر لیا، کچھ نہ کچھ تو بدلنا ہوگا، یہ ظلم اب اور نہیں سہوں گی، اور میرا پہلا قدم ہوگا ابا کو اس گھر سے نکال کر اپنے گھر لے جانا۔ میں ابا کو فوراً اپنے گھر نہیں لائی، لیکن پچھلے واقعے کے بعد دل مطمئن نہ تھا۔ ہر روز میں دوپہر کو کچھ نہ کچھ لے جاتی، تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھتی، ان کی باتیں سنتی، ان کا دکھ بانٹنے کی کوشش کرتی۔ چھت کا وہ کمرہ میرا معمول بن گیا تھا، لیکن شاید میری یہ محبت کسی کو کھٹکنے لگی۔ ایک دن میں حسب معمول ابا کے پاس گئی، ان کا چہرہ کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ پوچھنے پر اتنا کہا، بیٹا اب زیادہ نہ آیا کرو، سب کو اچھا نہیں لگتا۔ کیوں ابا، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ سے ملنے بھی نہ آؤں؟ وہ خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں میں ایک ایسی گھبراہٹ تھی جو کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ اسی شام جب میں نیچے آ رہی تھی تو سیڑھیوں کے موڑ پر اچانک بھابھی کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، آواز بلند تھی۔ ہاں، میں نے کئی بار دیکھا ہے، وہ مجھے عجیب نظر سے دیکھتے ہیں۔ عمر ہو گئی ہے
है मगर नीयत पर शक है। अब बहाने बहाने से ऊपर आते हैं, कभी पानी मांगते हैं कभी कुछ और। मेरे कदम वहीं रुक गए, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या ये मेरे बाप के लिए कह रही है? क्या वाकई ऐसा इल्ज़ाम लगा रही है? मैंने आगे बढ़कर इनके सामने आकर कहा, क्या आप मेरे अब्बा पर इल्ज़ाम लगा रही हैं? भाभी चौंक गई मगर संभल गई। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, बस वो मुझे अजीब सी नज़र से देखते हैं। मेरे दिल को अच्छा नहीं लगता और तुम तो रोज इनके पास आती हो, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए वो तुम्हारे ससुर हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं गुस्से से चीखी मगर इसी लम्हे भाई आ गए। इनके चेहरे पर शक और संजीदगी का साया था। क्या हो रहा है यहाँ? भाभी फौरन इनके पास गई और आंखों में नमी लाकर कहने लगी, मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हें बताया था कि मुझे अजीब महसूस होता है। अब्बा जैसे पहले नहीं रहे। भाई ने मेरी तरफ देखा और बगैर किसी सवाल के बोले, अगर तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है तो मैं बात करूंगा, मैं अब्बा से पूछूंगा क्या मतलब है तुम्हारा। तुम अपनी बीवी के सिर्फ एहसास पर मेरे बाप पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मेरी आवाज़ लरज़ गई। भाई खामोश रहे और यही खामोशी मेरे दिल पर एक गारी ज़रब लगा गई। मैं समझ गई थी कि घर की दीवारें पहले ही झूठ की बुनियाद पर हिलने लगी हैं और अब इनमें दरार आना बाकी है। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली न थी कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। नंबर भाई का था। दिल बेवजह धड़कने लगा। कॉल उठाई तो पीछे शोर सुनाई दिया। बस बहुत हो गया, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भाई की आवाज़ थी, गुस्से में तनी हुई। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आप खुद देख लो। कॉल काटती मैं तेज कदमों से भाई के घर पहुंची। दरवाजा खुला था। सहन में मोहल्ले की चंद औरतें जमा थी। सबकी नजरों में सवालात थे और चेहरे पर हैरत। मैं अंदर पहुंची तो देखा अब्बा, मेरे अब्बा दरवाजे के बाहर जमीन पर गिरे हुए थे। इनके कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे। चेहरा सुर्ख था और आंखों में ऐसा कर्ब था जो किसी तूफान के बाद की तबाही जैसा होता है। मेरे कांपते कदमों ने इन्हें थाम लिया। अब्बा, मेरी आवाज निकल न सकी, सिर्फ आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मेरी तरफ देखा। चेहरा लरज रहा था, होंठ खुश्क और आवाज में वो कपकपाहट थी जो हर सच्चे बाप के दिल में उस वक्त आती है जब औलाद की दहलीज से धक्के देकर निकाला जाए। बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझे चप्पल से मारती थी। ये कहते ही इनका सर मेरे कंधे पर झुक गया। मैं हक्का बक्का रह गई। ये अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। क्या कहा आपने? भाभी ने मारा? अब्बा अब्बा की आंखों से आंसू निकलकर मेरे दुपट्टे में जज़ब हो रहे थे। इतने में भाई बाहर आए, चेहरे पर सख्ती, आंखों में नफरत। ले जाओ इन्हें, तुम्हें इतना शौक है ना इनके साथ रहने का, तो अब ले जाओ। इस घर में इनकी कोई जगह नहीं। क्या बात कर रहे हो भाई? ये अब्बा हैं, हमारे वालिद, जिन्होंने हमें पाला, जिंदगी कुर्बान की तुम्हारे लिए। यही कहा था उन्होंने, पर अब ये वैसे नहीं रहे। ये तुम्हें भी गलत नजर देते हैं और मेरी बीवी को भी। मैं अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकता। भाई, मैं चीख पड़ी, शर्म करो। अपनी बीवी के चंद झूठे अल्फाज पर बाप पर इल्जाम। तुम खुद को बेटा कहते हो? भाई ने मेरी तरफ देखा और शायद पहली बार मेरी आंखों में वो नफरत देखी जो आज तक सिर्फ खुद पर बर्दाश्त की थी, लेकिन अब बात मेरे अब्बा की इज्जत की थी। अब्बा के हाथ मेरे हाथ में कांप रहे थे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मुझे तुम्हारे पास रहना है बेटा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। मैंने अब्बा को सहारा दिया और इनके लरजते कदमों को अपने दिल की ताकत से थाम कर अपनी गाड़ी तक लाई। मोहल्ले की औरतें खामोश तमाशाई बनी रहीं। किसी ने कुछ न कहा। शायद सबको सच का इल्म था मगर सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रास्ते में अब्बा खामोश थे। मैंने इनका हाथ थामा तो वो बोले, बेटी, इस घर में मैं सिर्फ दुआएं की मगर बददुआ मल गई। मैंने सोचा भी न था कि मेरा बुढ़ापा यूं बेइज्जती में गुजरेगा। मेरी आंखों से बहते आंसुओं ने कसम खाई, अब इस बाप को कभी कोई आँच न आने दूंगी। अब्बा मेरे साथ आ चुके थे लेकिन इनकी आंखों में वो चमक कहीं गुम हो गई थी जो कभी मुझे अपने तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाती थी। दिन का ज्यादातर हिस्सा खामोशी में गुजरता। मैं बोलती, वो सुनते, कभी कभार मुस्कुरा देते, लेकिन वो मुस्कुराहट भी जैसे अधूरी होती। मैं हर वक्त इनके आस पास रहती, इनके लिए नरम बिस्तर लगाया, इनकी पसंद के खाने बनाए, लेकिन वो बस एक आध नवाला लेते और फिर ठंडी सांस भरकर चुप हो जाते। बेटा, एक दिन उन्होंने आहिस्ता से आवाज दी, जी अब्बा, अगर मैं ना रहूं तो मेरे कमरे की दराज में एक नीले रंग का लिफाफा है, वो तुम रख लेना। अब्बा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। वो मुस्कुराए, हमेशा कोई नहीं रहता, बस दुआएं बाकी रह जाती हैं। मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया। मैंने इनके कदम चूमे और रो पड़ी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। एक दिन अचानक अब्बा की तबीयत खराब हो गई, सांस फूलने लगी, हाथ कांपने लगे और चेहरा पसीने से भीग गया। मैं फौरन अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने ऑक्सीजन लगाई और कुछ टेस्ट किए। तशखीस हुई कि इनका दिल कमजोर हो चुका है और वक्त अब साथ नहीं दे रहा। मैंने इनका हाथ थामा। वो मुस्कुराए, बेटी, बस एक दरख्वास्त है, मेरे जनाजे पर किसी को रोने न देना। जो जिंदगी में मेरे
दुख का सबब बना हो। इनकी आंखें बंद हो गईं और दिल की धड़कन हमेशा के लिए खामोश हो गई। मेरे लिए दुनिया थम गई, मैं यतीम हो चुकी थी। लेकिन इस बार दुख कुछ और था। मैंने बाप को मरते हुए देखा, इनकी आंखों की आखिरी नमी को महसूस किया और इनके दिल की आखिरी धड़कन को अपने हाथों में बंद होते देखा। अब्बा का जनाजा सादगी से उठा, भाई को इत्तला दी, मगर वो आया नहीं। भाभी ने फोन तक न किया, बस चंद पुराने मोहल्लेदार और मेरी दो सहेलियां थी जो मेरे आंसू पोंछने आ गई थी। 3 दिन बाद मैंने अब्बा की बात याद की और इनका बताया हुआ लिफाफा निकाला। वो नीला लिफाफा एक वसीयत थी। साफ अल्फाज में लिखा था, मैं अब्दुल हफीज व गुलाम रसूल मुकम्मल होशो हवास में अपनी सारी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद अपनी बेटी के नाम करता हूँ, जो मेरे दुख दर्द में साथ खड़ी रही जब बेटा बेगाने हो गए। नीचे इनके दस्तखत थे, गवाह के तौर पर पुराने मोहल्ले के 2 बुजुर्गों के नाम थे। मैं हैरान थी, मुझे कभी दौलत की चाह न थी, न मैंने अब्बा से कुछ मांगा था। लेकिन ये वसीयत, ये सिर्फ जायदाद का कागज नहीं था, ये मेरे बाप का एतबार, इनका प्यार और मेरी वफा का इनाम था। मैंने वो लिफाफा सीने से लगा लिया और आंखों से बहते आंसुओं कागजों पर गिरने लगे। ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। दुनिया ने बाप को ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि सच का साथ देने वालों को रब कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अब्बा की तदफीन के बाद घर का हर गोशा इनकी याद से भरा हुआ था। 3 दिन गुजर चुके थे। चौथे दिन मैंने हिम्मत करके भाई को कॉल की। अब्बा चले गए, तुम्हें खबर भी ना हुई? वो खामोश रहा, जैसे कुछ कहने को हो मगर अल्फाज हलक में फंस गए हों। क्या तुम्हें अफसोस भी है? मैंने पूछा, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहकर फोन बंद हो गया। रात के सन्नाटे में अचानक कुछ आहटें हुई। मैं चौंक कर जागी। घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। दरवाजे के बाहर सहन में कुछ साए हरकत करते दिखाई दिए। मैं दबे पांव खिड़की के करीब आई और जैसे ही पर्दा हटाया, दिल धक से रह गया। 2 आदमी थे, इनके साथ भाभी भी थी, हाथ में एक बैग, चेहरा चादर से ढका हुआ। वो आहिस्ते से घर के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। मेरी सांसें रुक गईं। मैं चुपचाप छुपी रही कि मामला कुछ अजीब लगा। 15 मिनट बाद वो लोग मेरे कमरे की तरफ आने के बजाय अब्बा के कमरे की जानिब बढ़ गए। इनका मकसद साफ था और जब वो लौटे तो इनके हाथ में एक फोल्डर था। मैंने हिम्मत करके अगली सुबह अपने पुराने हमसाये चाचा सदीक से बात की, जो कब्रिस्तान के मुंजिम थे। उन्होंने एक खौफनाक इंकशाफ किया। बेटी रात 2 लोग कब्रिस्तान आए थे। कहने लगे कि कानूनी काम के लिए अब्बा की उंगली के निशान दरकार हैं। एक कागज पर अंगूठे के निशान लिए और चले गए। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अब समझ आया वो फोल्डर क्या था। वो आधी रात की चोरी किस लिए थी। भाभी ने अब्बा की लाश पर हाथ फिराकर जाली दस्तावेजात तैयार करवाए थे। इसी रोज मैंने अपनी वकील सहेली के जरिए रजिस्ट्री ऑफिस में मालूमात निकलवाई। शाम तक इतला आ गई, अब्बा के नाम की सारी जायदाद उनके पोते पोतियों के नाम कर दी गई थी और दस्तखत अंगूठे के निशान बज़ाहिर असल लग रहे थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये वही भाई था जिसने मेरी गुड़िया के लिए बाजार छान मारा था, और आज वही भाई अपनी बीवी के हाथों का कठपुतली बनकर बाप की लाश को भी सुकून न से दफना न सका। मैंने वो नीला लिफाफा निकाला जो अब्बा ने दिया था। असल वसीयत मेरे पास थी। अब वक्त आ गया था कि इंसाफ की जंग अदालत में लड़ी जाए। अब्बा की तदफीन के चंद दिन बाद भाई का फोन आया, हमें बात करनी है, तुम आ सकती हो। मैं जानती थी बात किस बारे में होगी। मेरी उंगलियां खुद ब खुद इस नीले लिफाफे की तरफ बढ़ी जो अब्बा ने मुझे अपनी वफात से पहले दिया था, मगर दिल कह रहा था अभी नहीं, अभी सब्र। भाई के घर पहुंची तो भाभी ड्राइंग रूम में पहले ही बैठी थी। चेहरे पर मामूल से ज्यादा नरमी और आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कामयाबी का नशा हो। भाई ने रस्मी सलाम के बाद सीधी बात शुरू की। हमने रजिस्ट्री के कागजात अपडेट करवा लिए हैं। अब्बा ने अपनी जिंदगी में ही वसीयत लिख दी थी, जिसके मुताबिक इनकी सारी जायदाद पोते पोतियों के नाम है। मेरे लबों पर एक लफ्ज भी ना आया। दिल चाहा कि वो असल वसीयत निकाल कर इनके मुंह पे मार दूं, चीख कर कहूं कि तुम लोग झूठे हो, मगर मेरी जुबान गुंग थी। भाई ने कुछ लम्हे मेरी खामोशी को देखा, फिर कहा, हम चाहते हैं कि ये सब कुछ सुकून से हो, कोई झगड़ा ना हो। आखिर तुम अकेली हो, तुम्हें अब्बा ने कुछ दिया होगा। दिल से मैंने इनकी बात पर महज नजरें झुकाई। भाभी ने धीमे अंदाज में तंज का खंजर चबोया। अब्बा भी जानते थे कि बेटे ही नस्ल बढ़ाते हैं, इसलिए उन्होंने बच्चों को हक दिया। मेरे दिल में दर्द की एक लहर उठी, मगर मैं फिर भी खामोश रही। अब्बा के आखिरी लम्हात याद आए, इनकी हिचकियों में छुपी वो बेबसी, इनका वो जुमला, बेटी मेरे जाने के बाद ये लिफाफा संभालना। भाई ने मेज पर कुछ कागजात रखे और कहा, ये दस्तखत शुदा कापियां हैं, तुम भी दस्तखत करो ताकि प्रोसेसिंग मुकम्मल हो जाए। मेरे हाथ कांपने लगे। कागजात देखे तो जाली दस्तखत, अंगूठे के निशानात नुमाया थे। मैं सब कुछ समझ चुकी थी, मगर चेहरे पर कोई तासर न आने दिया। मैंने दस्तखत न किए, बस आहिस्तगी से कहा, मुझे सोचने दो। भाभी फौरन बोली, सोचने की क्या बात है, सब कुछ साफ है, और अगर अब्बा ने तुम्हें कुछ देना होता तो वो भी लिख कर जाते। मैंने नजरें ऊपर उठाकर कहा, आपने इनका दिल पढ़ा था या वसीयत? ये जुमला कहकर मैं उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। घर वापस आई तो आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं
जानती थी कि झूठ जीत गया है फिलहाल, मगर मैं भी अब्बा की बेटी हूँ जो चुप तो हो सकती है मगर कमज़ोर नहीं। इस रात नींद नहीं आई। मैंने बार-बार वो नीला लिफाफा खोला पढ़ा और अब्बा के दस्तखतों को उँगलियों से छुआ, जैसे इनका हाथ थाम लिया हो। अब अब्बा का इंसाफ सिर्फ वसीयत से नहीं, मेरे अज़म से होगा। 40 दिन बीत चुके थे। अब्बा की जुदाई जैसे जिस्म से रूह खींच रही हो। हर दिन इनके बगैर अधूरा-सा गुज़रता। 40वीं की तैयारी करनी थी। मैंने खुद सब कुछ सँभाला, किचन में काम करती, हाथों से पकवान बनाती और दिल में हर निवाला इनकी याद से तर होता। 40वें के दिन मोहल्ले की औरतें आना शुरू हो गईं। सहन में कालीन बिछाए गए, देगचियों में खुशबू फैलने लगी। हर चेहरे पर शौक की लकीरें थीं, मगर कुछ आंखों में तजस्सुस भी साफ दिखाई दे रहा था। किचन के कोने में बैठी एक पुरानी खाला, जो मोहल्ले में बरसों से रहती थी, मेरी तरफ झुककर बोली, "बेटा, मुझे एक बात कहनी है।" शायद तुम्हें मालूम ना हो, मैंने इनकी तरफ हैरत से देखा। वो आहिस्तगी से बोली, तुम्हारा अब्बा अक्सर छत के कमरे में जाया करता था। हम औरतें ऊपर कपड़े डालने जाती तो देखती कि वो कुछ लिख रहे होते या कभी कोई चीज़ छुपा रहे होते। मेरी सारी सांस रुक गई। क्या चीज़? हमने देखा क्या था? नहीं बेटा, हमने कभी पूछने की हिम्मत न की, मगर एक दिन वो मेरे शौहर से कह रहे थे कि जो असल खजाना है वो न कागज़ है न पैसा, वो छिपा है वहाँ जहाँ धूप भी राज को ना छू सके। मेरे दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। क्या वाकई अब्बा ने कुछ छुपाया था छत के कमरे में? मैंने दिल में सोचा, शायद वो कुछ यादें हों या फिर अब्बा की लिखी हुई डायरियां, या मुमकिन है वो असल कागजात या कुछ और। भाभी जो करीब ही बैठी थी, खाला की बातें सुनकर चुकी थी। इनके चेहरे पर फौरन बेचैनी और घबराहट सी छा गई। वो फौरन उठी और अंदर चली गई। 40वें का ख़त्म होते ही मैं सीधी कमरे में गई और एक पुराना संदूक निकाला जिसमें अब्बा की पुरानी चीज़ें थी। एक पुरानी चाबी भी मिली जिस पर लिखा था, ऊपर कमरा राज का मुहाफिज। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फैसला कर लिया, आज रात छत पर जाकर देखूंगी कि वहाँ क्या है। लेकिन भाभी मुझसे तेज निकली। रात के सन्नाटे में वो मुझसे पहले ही कमरे में पहुंच चुकी थी। इनके हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई खजाना ढूंढने निकला हो। इनके कदमों में जल्दी थी, आंखों में लालच की चमक। छत के कमरे का ताला वो पहले ही दिन किसी बहाने से चाबी लेकर खोल चुकी थी। दरवाज़ा धीरे से खोला और टॉर्च की रोशनी में कमरे का जायजा लेना शुरू किया। भाभी ने जल्दी जल्दी वो सब चीज़ें उलट पलट करना शुरू कर दी। एक एक कपड़े को चेक किया, डब्बे को खोला, हत्ता कि दीवार पर लगी पुरानी कीलों के पीछे भी हाथ मारा, मगर जो वो चाहती थी वो वहाँ ना था। कहाँ छुपाया है? ज़रूर जेवर है या ज़मीन के ओरिजिनल कागजात। सब कह रहे थे कि उन्होंने कुछ छुपाया है। वो बड़बड़ाती रही, पर कमरा जैसे खामोश तमाशाई बनकर इन्हें देख रहा था। वक्त जैसे ठहर गया हो। भाभी के माथे पर पसीना आ गया था, मगर हार मानना उनकी फितरत में ना था। उन्होंने एक पुराने संदूक को खोला। इसकी तह में कुछ पुरानी चादरें थी। एक के नीचे लकड़ी का डब्बा, एक छोटा सा डब्बा मिला। उन्होंने जल्दी से उठाया, खोला तो अंदर सिर्फ कुछ पुराने सिक्के, एक जंग आलूद कंगन और चंद अंगूठियां थी जो शायद अम्मी की जहेज के बाकियात थे। इनके चेहरे पर मायूसी छा गई। वो चीज़ जिसकी इन्हें तलाश थी वो न मिली। इसी दौरान अचानक किसी लकड़ी के टुकड़े से इनका पाँव टकराया और इनका तवाज़न बिगड़ गया। वो घबरा कर पीछे हटी और एक छोटा सा अलमारी नुमा हिस्सा नजर आया जिस पर गर्द की मोटी तह थी। उन्होंने कपड़ा मारकर साफ किया और दरवाज़ा खोला, मगर अंदर सिर्फ सास ससुर के पुराने कागजात थे, कुछ पुराने बिल्स, ज़मीन के नक्शे और सरकारी ख़त जो अब बेकार हो चुके थे। भाभी का चेहरा अब साफ बता रहा था कि वो बुरी तरह से मायूस हो चुकी हैं। उन्होंने सब कुछ समेटा, मगर जाते जाते अब्बा की तस्वीर को देख कर लम्हा भर रुक गईं। इनकी नज़र तस्वीर से उलझ गई, जैसे कुछ कहना चाहती हो, कुछ पूछना चाहती हो। क्या वाकई तुमने कुछ छुपाया था या सब कुछ वहम था? भाभी के जहन में शक का एक बीज तो बोया जा चुका था, लेकिन ज़मीन वही थी जहाँ फसल अभी तक नमदार नहीं हुई थी। वो नीचे वापस चली गई, मगर दिल का इज़्तिराब इनके चेहरे से आया था। और मैं भी ये सब छुप कर देख रही थी, एक कोने से खामोश मगर चौंका। मैं जानती थी कि इस कमरे में कुछ ज़रूर है, कुछ ऐसा जो सिर्फ चीज़ों में नहीं वक्त में छिपा है, और इस वक्त का पर्दा भी जल्द उठने वाला है। ये सिर्फ तलाश की पहली कोशिश थी, असल राज अभी बाकी था और शायद अब्बा ने इसे मेरे लिए बचा के रखा था। छत के कमरे की मैं खामोशी से तलाशी लेने लगी। भाभी नीचे तो उतर आई, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, इसलिए उनकी नज़रें बार बार ऊपर देखती, जैसे वहाँ कुछ रह गया हो, कोई चीज़ छूट गई हो, या शायद दिल का शक अभी मुकम्मल ना हुआ हो। अगली शाम जब सब नमाज मगरिब के बाद खाने में मसरूफ़ थे, भाभी ने एक बार फिर ऊपर जाने का इरादा किया। इस बार इनके साथ ना कोई शोर था, ना किसी से इजाज़त ली गई। इनका ख्याल था कि दिन की रोशनी में शायद कुछ नज़र आ जाए जो रात की तारीकी में छुपा रह गया हो। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ी और छत के कमरे का दरवाज़ा खोला। धूप की रोशनी अब मान पड़ चुकी थी, कमरे में नीम अंधेरा छाया हुआ था। एक बार फिर इन्होंने टॉर्च निकाली और कमरे के हर कोने का जायजा लेना शुरू कर दिया। इस बार इनकी नज़र इस पुराने बोरी नुमा कपड़े पर पड़ी जो एक कोने में रखा था। इन्होंने इसे उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, ज़मीन में हल्की सी जुम्बिश हुई। एक हंसकारती आवाज़ ने फ़िज़ा में सनसनी फैला दी। इनका दिल धड़कने लगा, कदम पीछे हटने लगे, लेकिन
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरे के कोने से एक लंबा स्याह रंग का सांप निकल आया था। धीरे धीरे इसकी हरकत अब भाभी की तरफ हो रही थी और टॉर्च की रोशनी में इसकी आंखों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। भाभी ने चीखने की कोशिश की लेकिन आवाज गले में फंस गई। वो पीछे हटी लेकिन कदम लड़खड़ाए और गिरने से पहले ही सांप इनके पाँव में हमलावर हो गया था। एक शदीद छन, एक जलता हुआ दर्द और एक कील जैसी चुभन। सांप ने इनके पाँव पर डस लिया था। वो जमीन पर गिर गई, हाथों से फर्श को रगड़ती रहीं और चीखने की कोशिश करती रहीं, लेकिन जुबान जैसे बंद हो चुकी थी। जिस्म सुन्न होने लगा था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। नीचे मौजूद अफराद को इनकी चीख सुनाई दी तो सब घबरा कर दौड़ पड़े। भाई, मैं और मोहल्ले की एक खातून फौरन ऊपर पहुंचे। मंजर देखकर सबके चेहरे सफ़ेद हो गए। भाभी ज़मीन पर तड़प रही थी, चेहरा जर्द और सांसें उखड़ी हुई थी। मैंने फौरन पानी लाया और भाई ने एम्बुलेंस के लिए कॉल की। महज 10 मिनट में हम अस्पताल पहुंच गए, मगर डॉक्टरों का चेहरा बता रहा था कि जहर जिस्म में काफ़ी हद तक फैल चुका है। हम पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन जहर काफ़ी खतरनाक था। डॉक्टर ने कहा भाई की आंखों में एक खौफ छुपा हुआ था। भाभी का हाथ इनके हाथ में था और पहली बार मैंने इनके चेहरे पर सच्ची परेशानी देखी। वही भाई जो कभी अपने बाप के घर से निकालने में लम्हा भर भी ना झिझका, आज अपनी बीवी को तड़पते देखकर टूट रहा था। रात भर हम अस्पताल में रहे। भाभी की हालत बिगड़ती गई। कभी इनकी आंखें बंद होती, कभी वो हजियानी अंदाज में बड़बड़ाती, कमरा, छत, खजाना मुझे मिलेगा, सब कुछ मुझे मिलेगा। मैं खामोशी से इनकी बातें सुनती रही। अब बात वाज़ेह हो चुकी थी। लालच इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। भाभी की हालत बदस्तूर नाजुक थी। डॉक्टरों ने कहा अगर जिस्म ने जहर को कबूल ना किया तो फालज में बदल सकता है। मेरे कदम जैसे जमीन में गिर गए। आंखों के सामने वो लम्हे गुजरने लगे जब अब्बा को इस औरत ने चप्पल से मारा था। आज वही औरत जमीन पर बेबस माजूरी को दहाने पर थी। कहा जाता है ना, बद्दुआएं सीधी ऊपर जाती हैं और खाली नहीं लौटती, और अब ये हकीकत मेरे सामने जिंदा मिसाल बन चुकी थी। भाभी बिस्तर पर नीम दराज थी, चेहरे का जर्द रंग, आंखें खुली मगर बेनूर। इनकी आंखें एक जिंदा लाश बन चुकी थी। जिस्म का दायां हिस्सा बिल्कुल साकत था, दायां बाजू, टांग, हत्ता के चेहरे का दायां पहलू भी जैसे किसी और का हो। डॉक्टर ने हमें एक तरफ ले जाकर कहा जहर का असर जिस्म के असाबी निज़ाम पर पड़ा है, भाभी को फालज हो चुका है और बदकिस्मती से इनका दायां हिस्सा मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। भाई का चेहरा जर्द पड़ गया, वो कुर्सी पर गिर सा गया। ये कब तक ठीक हो सकती हैं? डॉक्टर ने आह भरी। मुमकिन है कुछ बहाली हो मगर मुकम्मल सेहतयाबी मुश्किल है। इनका ज़हन होश में है लेकिन जिस्म का एक हिस्सा इनका साथ नहीं देगा। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो भाभी ने मेरी तरफ देखा। इनकी आंखों में कई जज्बात बैक वक्त तैर रहे थे, पछतावा, शर्मिंदगी, दर्द और शायद वो अल्फाज जो अब जुबान अदा नहीं कर सकती थी। आपकी तबीयत कैसी है? मैंने नरमी से पूछा मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। वो बोलना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, मगर चेहरे का वो हिस्सा हरकत करने से कासिर था। सिर्फ आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैं इनके पास बैठकर इनका हाथ थामा, वही हाथ जो कभी मेरे अब्बा पर उठा था, आज वही हाथ बेहिस पड़ा था। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। भाई एक कोने में खड़ा नजरें झुकाए और शायद अंदर ही अंदर टूट रहा था। वक्त का पहिया घूम चुका था और इंसाफ की पहली ज़रब लग चुकी थी, मगर दिल कहता था अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ मकाफाते अमल का आगाज था। भाभी की बीमारी के बाद घर का माहौल तेजी से बदलने लगा। भाई जो कभी इनके लिए आसमान से तारे तोड़कर लाने को तैयार था, अब बोझिल कदमों से अस्पताल आते और बस रस्मी हाल अहवाल पूछकर चले जाते। चंद हफ्तों बाद भाभी को घर मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वही छत का कमरा जहाँ कभी अब्बा को धूप में बिठाया गया था, अब भाभी के लिए महसूस कर दिया गया। इनका बिस्तर एक पुराने पंखे के नीचे लगा दिया गया। वही पुराना प्याला जो अब्बा के वक्त इस्तेमाल होता था, अब इनके सामने रखा गया। सारा दिन वो छत पर खामोशी से लेटी रहती और शाम को घर की मुलाजमा आकर खाने का एक नवाला इनके मुंह में डालती। इनके लबों पर अब कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ आंखों की नमी बाकी रह गई थी। कुछ दिन बाद एक और खबर ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। भाई ने दूसरी शादी कर ली। नई दुल्हन खुश शक्ल और बोलने में माहिर थी। मोहल्ले भर में बात फैल गई कि भाई को सुख चैन की जिंदगी चाहिए थी और बीमार बीवी के साथ जीना इनकी बस की बात नहीं थी। भाभी के बच्चे जो कभी इनकी गोद में खेला करते थे, अब नई माँ के रंग में रंगने लगे हैं। बड़ी बेटी ने बात करना छोड़ दिया, बेटा नाराजगी से दूर रहने लगा। नई माँ ने जल्दी ही घर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और बच्चों को भी भाभी से दूर कर दिया। अक्सर सुना जाता था अम्मी बीमार हैं, इनसे बदबू आती है, हमें इनके कमरे में नहीं जाना। वही बच्चे जिनके लिए कभी भाभी ने दुनिया से लड़ाई की, आज माँ की बीमारी से शर्मिंदा होकर मुंह छुपाए फिर रहे थे। एक दिन मैं इनके पास गई, इनके बिस्तर के पास बैठकर हाथ थामा तो इन्होंने बमुश्किल
आंखें खोली, इनके चेहरे पर कोई शिकवा ना था, बस एक वीरानी छाई हुई थी। मैंने नरमी से कहा, याद है जब आपने कहा था अब्बा की मौजूदगी बच्चों के लिए खतरा है, आज आपको उन बच्चों से खतरा नहीं लगता? वो ना बोल सकी, सिर्फ आंखों के कोने में एक आंसू बह निकला। नए दिनों की नई बीवी अब घर की मालकिन बन चुकी थी और भाभी अब सिर्फ एक साया थी, एक बोझ, एक ऐसा वजूद जिसे सब भुला देना चाहते थे, मगर मैं नहीं भूली थी। मैं हर लम्हा अब्बा की तस्वीर अपने दिल में सजाए रखती थी और हर रोज़ छत की तरफ देखकर महसूस करती थी, ये मकाबात अमल का वो लम्हा है जहाँ वक्त ने इंसाफ का दामन थामा है और अभी बहुत कुछ बाकी है। एक दिन मुलाजमा ने खाना लेकर छत पर जाते हुए लापरवाही से कहा, खाना नीचे गिर गया था, मैं इसी पुराने प्याले में रख लाई हूँ जो अब्बा जी के वक्त में इस्तेमाल होता था। मैं चौंक गई, वही प्याला, वही जिसमें मेरे बाप को खाना दिया जाता था, जो कुत्ते के लिए रखा जाता था, आज वही प्याला एक बार फिर इस्तेमाल हो रहा था। इस बार इसे देखकर चीखने वाली आवाज़ मेरे अब्बा की नहीं बल्कि मेरी भाभी की थी। जैसे ही मुलाजमा ने वो प्याला उनके सामने रखा, भाभी की आंखों में वहशत उतर आई, इनका सारा जिस्म थरथरा उठा, होंठों से वो मुश्किल एक कराह निकली और फिर एक चीख। वो चीख ऐसी थी जैसे किसी पुरानी कर्ब की सदा दोबारा। इनकी चीख सुनकर नई भाभी भागती हुई ऊपर आई, बच्चों ने कानों में उंगलियां डाल दी। भाई ने एक लम्हा सोचा, फिर आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, यही प्याला कभी अब्बा के सामने रखा था। नई बीवी ने बेहिसी से कहा, वो तो मर्द थे, बर्दाश्त कर लेते थे, ये तो औरत है, इसे इतनी तकलीफ क्यों? मैं खामोश थी, मगर मेरे अंदर चीखें गूंज रही थीं, वही गूंज जो अब्बा की खामोशी में थी, वही चीखें जो वो दबाकर सह गए थे, आज वही चीखें भाभी की आवाज़ बन चुकी थी। मैं छत पर पहुंची, इनके करीब जाकर बैठ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखों में दर्द की लहर थी जो शायद मुआफ़ी मांगना चाहती थी, ये शायद इंसाफ के मुंतज़िर थे। यही प्याला था ना जिस पर आप हंसती थी? इनकी आंखों से 2 आंसू बहकर तकिए में जज़ब हो गए। मैंने प्याला उठाकर दूर फेंक दिया और एक नई प्लेट में खाना रखकर इनके सामने रखा। मुझे मेरे अब्बा की तौहीन बर्दाश्त नहीं थी और ना ही किसी और का दर्द, लेकिन ये वक्त का इंसाफ है जो हर किसी के दरवाजे पर आता है। प्याला लिए बस चेहरे बदलते हैं। वो मुझे देखती रही, शायद दिल में कुछ टूटा या कुछ जुड़ा, मगर अब वक्त सिर्फ खामोशी का था। मैं छत से उतरी तो हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी इन अनदेखे बोझ को उठाया हुआ हो। कमरे में दाखिल होकर अब्बा की तस्वीर के सामने बैठ गई, वही तस्वीर जो इनकी वफ़ात के बाद मैंने अपने बेड के करीब रख ली थी। तस्वीर में इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मेरी आंखों से एक खामोश आंसू बह निकला। मैंने चुपचाप हाथ उठाया और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरे अब्बा का इंतज़ाम हो गया। ये दुआ नहीं थी, ये एक दर्द भरा एतराफ़ था, एक अज़ियत के बाद की राहत थी। मैं जानती थी बददुआ देने की इजाज़त हमें नहीं, मगर जिसने ज़ुल्म सहा हो, इसकी खामोशी भी कभी-कभी बददुआ बन जाती है और अब्बा की खामोशी इनकी सबसे बड़ी फ़रियाद थी। मैंने अब्बा की तस्वीर को छुआ, जैसे इनकी पेशानी को चूम रही हूँ, और धीरे से कहा, अब्बा, मैंने आपका हक ले लिया, आपकी इज़्ज़त बचाई, आपका नाम पाक रखा, अब आप सुकून से सो सकते हैं। इस लम्हे खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे अब्बा की दुआ मेरे इर्द-गिर्द बिखर गई हो। कमरे में गैर महसूस सी खुशबू फैल गई और एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे कोई मेरा सर थपथपा रहा हो, जैसे कहने वाला हो, बेटी तूने मेरा मान रखा। मैंने आंखें खोली और एक तमानियत से दिल भर गया। बदले की आग ने मुझे कभी ना जलाया, मगर सच्चाई की रोशनी ने हर तरफ अंधेरा साफ कर दिया। अब्बा का इंतकाम हो चुका था, वक्त ने ले लिया था, और वक्त में बेहतर मुसन्निफ कोई नहीं होता। छत के सुनसान कमरे में ज़िंदगी अब आहिस्ता-आहिस्ता मौत से ज़्यादा बेहिस हो चुकी थी। भाभी का जिस्म पहले ही फालिज की मार सह चुका था, अब ज़हन भी साथ छोड़ने लगा था। भाई की नई बीवी घर में मुकम्मल काबिज़ हो चुकी थी। इसकी चालाकी, बातों में मिठास और चेहरे पर मासूमियत का नकाब इतना मज़बूत था कि बच्चे भी धोखा खा बैठे। इसने आहिस्ता-आहिस्ता भाभी के बच्चों को इनके खिलाफ करने की मुहिम शुरू की। तुम्हारी माँ का तो अब कुछ नहीं हो सकता, वो बिस्तर की होकर रह गई हैं, और ये घर ये तुम्हारे अब्बा ने मेरे लिए बसाया है। तुम्हें इज़्ज़त से जीना है तो अपनी नई माँ को माँ समझो। बच्चे मासूम थे, भटकने लगे। वो औरत बड़ी चालाकी से इनके दिलों में पुरानी माँ के लिए नफरत का बीज बो रही थी। मैं जब भी भाभी को देखती, वो मुझे एक टक घूरती रहती, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक दिन छत पर मैंने इन्हें ज़ोर-ज़ोर से कुछ बोलने की कोशिश करते देखा, मगर आवाज़ न निकलती, सिर्फ आंखों से पानी था और होंठ हिलते थे, जैसे कोई दुआ या बददुआ बन रहे हों। इधर मैं मुकम्मल खामोश न बैठी। अब्बा की वसीयत मेरे पास महफूज थी, असली गवाहों के दस्तखत के साथ, इनकी तहरीर और इनका अंगूठा था, मगर मैं जानती थी कि झूठ की दीवार गिराने के लिए वक्त का इंतखाब ज़रूरी होता है, और वो वक्त आ गया। भाई और भाभी ने अब्बा की जायदाद के जाली कागजात के ज़रिए कब्ज़ा हासिल कर लिया
تھا। وہ خود کو قانونی وارث ظاہر کر چکے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اب عدالتی جنگ کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ میں نے وکیل سے رابطہ کیا اور پوری دستاویزات ان کے حوالے کی۔ وکیل نے کاغذات دے کر کہا، یہ واضح جعل سازی ہے۔ اگر گواہ حاضر ہو جائیں اور دستخط کی تصدیق ہو جائے تو کیس ہمارے حق میں ہوگا۔ عدالت میں مقدمہ دائر ہوا۔ پہلی سماعت میں ہی عدالت نے نوٹس جاری کر دیا اور جعلی دستاویزات کی فورینسک جانچ کا حکم دے دیا۔ بھائی نے جب یہ خبر سنی تو وہ گھبرا گیا۔ کئی سالوں بعد پہلی بار ان کی آنکھوں میں خوف دکھائی دیا۔ نئی بیوی نے اسے بھڑکایا، یہ سب کچھ تمہاری بہن کا پلان ہے۔ وہ تمہیں جائیداد سے بے دخل کر دینا چاہتی ہے، لیکن میں کسی کا حصہ نہ مانگ رہی تھی، میں صرف انصاف مانگ رہی تھی، ابا کی عزت کا، ان کے آخری فیصلے کا۔ چند دن بعد عدالت میں پیشی تھی۔ میں نے سب ثبوت تیار کیے، گواہوں سے رابطہ کیا اور ابا کے الفاظ کو دل میں دہرا کر کمرہ عدالت میں داخل ہوئی۔ یہ صرف کاغذوں کا جنگ نہ تھی، یہ عدالت میں پہلی سماعت کے دوران ہی جج نے بھائی کے وکیل سے سوال کیا، اگر مرنے والے نے پوتے پوتیوں کے نام جائیداد کی ہو تو وہ دستاویزات ہسپتال میں لے جانے سے پہلے کیوں تیار کی گئی اور لاش سے انگوٹھے کے نشان کیوں لیے گئے؟ سوال وہ تھا جو سچ کے دروازے کھولنے کے لیے کافی تھا۔ بھائی کے وکیل کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور چپ چاپ کھڑی اپنے ابا کی تصویر ذہن میں لیے صرف ایک جملہ دل میں دہرا رہی تھی، ابا، میں نے وعدہ کیا تھا آپ کے سچ کو جھوٹ کے نیچے دبنے نہیں دوں گی۔ اب کھیل پلٹ چکا ہے اور انصاف کی کرسی پر بیٹھا قانون ابا کی سچائی کی گواہی بنتے جا رہا تھا۔ عدالت کا دن تھا، میری انگلیاں کپ کپا رہی تھی، مگر دل میں ایک عزم کی روشنی تھی جو ابا کی وصیت کی سچائی سے جڑی ہوئی تھی۔ کئی ماہ کی قانونی جنگ، بے شمار پیشیاں، سوال و جواب، ثبوت اور گواہیوں کے بعد آخر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار صرف مجھے نہیں، میرے ابا کی روح کو بھی تھا۔ جج نے جیسے ہی فیصلہ سنایا، کمرہ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ عدالت تمام شواہد اور گواہیوں کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اصل وصیت وہ ہے جو عبدالحفیظ مرحوم نے اپنی بیٹی کے نام تحریر کی۔ جعلی دستاویزات ناقابل قبول قرار دی جاتی ہیں، لہٰذا تمام جائیداد قانونی وارث یعنی بیٹی کے نام منتقل کی جاتی ہے۔ میرے کانوں میں جملے گونجنے لگے، میری آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں شکر اور روح میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے عدالت سے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی مگر لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ابا نے آپ کی عزت بچا لی، آپ کا حق آپ کے فیصلے کے مطابق پورا کیا۔ بھائی سر جھکائے عدالت سے نکلا، نئی بیوی اسے بازو سے تھامے تیز قدموں سے باہر نکلی، جیسے اس فیصلے کی شرمندگی سے منہ چھپانا چاہتی ہو۔ ان کے چہروں پر شکست، ذلت اور بے یقینی لکھی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جس بیٹی کو کمزور سمجھا، جس پر انگلی اٹھائی، آج وہی ان کے جھوٹ کو منہ کے بل گرا چکی تھی۔ جائیداد میرے نام ہو چکی تھی، گھر، زمین، بینک بیلنس، سب کچھ میرے نام تھا۔ میں نے وکیل سے کہا، یہ جائیداد کسی کو نہیں جانی چاہیے، اسے کسی یتیم خانے کو دے دو۔ وہ حیران ہوا، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کتنی بڑی رقم ہے؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا، مجھے صرف یہ اندازہ ہے کہ میرے ابا نے ساری زندگی دوسروں کے لیے جیا۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کا ثواب ان بچوں کو ملے جن کے پاس باپ کا سایہ نہیں۔ کچھ دنوں میں ساری پراپرٹی ایک معروف یتیم خانے کے نام ہو گئی، اور جب پہلی بار میں اس یتیم خانے کے بچوں سے ملی تو ان کے چمکتے چہرے دیکھ کر میرے دل میں ایسا سکون اترا جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے ابا کی ایک تصویر وہاں دیوار پر لگوائی اور تصویر کے نیچے لکھوایا، یہ گھر ان بچوں کے لیے ہے جن کے ابا نہیں، مگر دعائیں دینے والی مائیں اور بہنیں ہوں۔ ادھر بھائی کا حال دن بدن بگڑتا گیا۔ وہ جو غرور میں چور تھا، آج شرمندگی کی چادر اوڑھے چپتا پھر رہا تھا۔ بیوی کا رویہ بدل گیا، بچے دور ہو گئے اور گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ چھت پر وہی پرانا کرب، بھابھی کا ٹھکانہ۔ فالج کے بعد ان کی زبان مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ ان کا جسم نڈھال اور روح تھکی ہوئی تھی۔ میں ان کے قریب بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما جو بے جان سا محسوس ہوا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہ وہ معافی مانگ سکتی تھی، نہ اپنی صفائی دے سکتی تھی، لیکن ان آنکھوں میں جو دکھ تھا، جو ندامت چھپی ہوئی تھی، وہ ہر لفظ سے بڑھ کر تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور آہستگی سے کہا، میں نے آپ سے بدلہ نہیں لیا، میں نے بس انصاف کیا۔ وہ مسلسل مجھے دیکھتی رہیں، شاید وہ لمحہ، وہ جملہ ان کے دل میں کچھ ٹھنڈک دے گیا، یا شاید ایک تکلیف کو اور گہرا کر گیا۔ میں اٹھی، آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، یہ وقت کا انصاف تھا جو مکمل ہو چکا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں کچھ خاص سکون تھا، جیسے قدرت نے کچھ کہہ دیا ہو جو لفظوں سے باہر تھا مگر دل میں اتر رہا تھا۔ میں سفید دوپٹہ اوڑھے سر جھکائے آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہاتھوں میں گلاب کے پھول تھے اور دل میں وہ سب لمحے جو ابا کے ساتھ گزرے تھے اور جو ان کے بغیر گزرے۔ قبر کے پاس پہنچی تو قدم خود بخود رک گئے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں میں نے اپنے ابا کو سپرد حق کیا تھا۔ وہ لمحہ یاد آیا جب ان کے سرد ہاتھ میری انگلیوں سے چھوٹا تھا، اور آج ان کی قبر کے سامنے کھڑی میں نے سر جھکا کر ہاتھ جوڑا۔ ابا، میری آواز بھیگی ہوئی تھی، آپ کی بیٹی نے انصاف دلایا، آپ کا حق دلایا۔
मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मुझे मालूम है आप इस वक्त मुझे देख रहे होंगे और दिल में मुस्कुरा रहे होंगे। आपने कहा था कि बेटियों पर एतबार करो और मैंने वही एतबार निभाया। अब्बा की कब्र के पास बैठकर गुलाब के फूल मट्टी पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता इन लम्हों को याद करती रही जब वो मेरे लिए दीवार बनकर खड़े होते थे, जब मैं बचपन में डर के मारे इनके पीछे छुप जाती थी और वो कहते थे बेटी जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। आज मैंने वही वादा वापस किया था, जब तक मैं हूँ आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। चंद लम्हों बाद मैं उठी और कब्र को आखिरी नज़र देखकर आसमान की तरफ देखा। सूरज की किरणें नरम हो चुकी थी, जैसे वो भी इस बेटी को सलाम कर रही हो जिसने अपने बाप का इंसाफ जिंदा किया। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपने मामूल पर आ गई, मगर वो सब कुछ जो इस वक्त गुजरा मेरी रूह का हिस्सा बन चुका था। भाई तन्हा हो गया था, नई बीवी ने भी इसे छोड़ दिया और बच्चे नफरत में पलकर खामोशी का शिकार बन गए थे। भाभी अभी भी जिंदा थी, मगर सिर्फ एक सांस लेता हुआ जिस्म। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो माफ़ी मांग रही हों, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने वो पुराना घर फरोख्त करके यतीम खाने में मजीद कमरे बनवाए। वहाँ पढ़ने वाले बच्चों ने चेहरों पर जो मुस्कुराहट आती वही मेरी ज़िंदगी का सुकून बन गई थी। हर जुम्मे को मैं इन बच्चों से मिलने जाती, इनके साथ बैठकर खाना खाती, इनकी बातें सुनती और दिल ही दिल में शुक्र अदा करती, या अल्लाह तूने मुझे सच का रास्ता दिखाया, सब्र दिया और वो हिम्मत बख्शी जो जुल्म के खिलाफ खड़ी होने के लिए काफ़ी थी। और फिर एक दिन जब मेरी किताब मुकम्मल हुई, मैंने इसका नाम रखा छत का आसमान। ये मेरी कहानी थी, मेरे अब्बा की, मेरे सब्र की, मेरे आंसुओं, दुआओं और इस इंसाफ की कहानी जो वक्त ने अपने हाथों से लिखा था। किताब के आखिरी सफ़े पर एक जुमला दर्ज किया, माँ बाप का दिल न दुखाओ वरना मकाफात अमल का दर्द नस्लों तक जाता है।